Namaste everyone. My name is Vaishali Shah. I welcome each one of you to our session on Hindu culture and lifestyle. It's a book series which is being written on various topics of various aspects of Hindu culture. So, as promised, we have a very interesting guest today who had come to our session earlier, but because of his popularity and demand by our viewers, we had to invite him again. And today we have a different topic. So, before we start, let's do a small prayer. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते डॉक्टर मितुल त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? All good. So Mitul ji, before we start our session, I would like to read your introduction to our audience so that they know who we are talking about. Yeah, sure. Yeah. So Mitulji is hyperpolyglot decoding ancient 45 languages, associated with scientists at NASA, Goddard Center, WC USA, the Parker Solar Probe, working as ancient concept designer in deep space science, Mangalyaan and Chandrayaan 2. Upcoming projects are Gaganyaan, Aditya L1, Chandrayaan 3, and Mission Winners. His achievements are that he was awarded by Kingfisher Group in 2007 for getting 11th rank in all over the world and first rank in Asia out of 3.5 lakh students on an online project named as Management Through Documentations. His achievements in Vedic mathematics is a trademark. Books in Vedic maths, Ramta Ramta is basic calculations and methods in Gujarati. Ancient maths and Vedas, 1 to 9 volume, each contain approximately 750 to 800 pages on development of number systems in different parts of the world in different languages. He is hyperpolyglot. His specialization is in ancient languages and scripts. He can read and translate 45 ancient languages and understand 9 scripts. His first book on ancient languages, Ancient Hebrew, a language of Bible. Second book is Indus Scripts and its Glory. He's the only person in the world who can translate the Indus script. An official declaration of his name is Indus Script Reader and Translator, made by World Linguistic Society and ASI, which is Archaeological Survey of India, in August 2013. He was the team member of Marine Archaeological Department in 2008 to 2011 and worked for searching for ancient Dwarka and Samudra Manthan at Pinjara. Pinjara, Olpad district, Surat. Still, he is working with archaeology department. As a historian, he has written the history of Surat from the era of Parshuram to the 15th century. He's also delivering different lectures in geological places with ancient history covered in our ancient textures like Raman placed at different places on the earth and coordinating the logical arguments with these places in history. He's delivering lectures in the University of Oxford and Cambridge University. His subject is quantum physics and Vedas. He's also working with ISRO, Bangalore. In Mars mission, he was the concept provider and spaceship structure advisor. At present, he is working as an advisor, concept designer in deep space science, MOM, Chandrayaan 2, and in upcoming projects, which are Gaganyaan, Aditya L1, Chandrayaan 3, and mission winners, sorry. In July 2013, he got an offer from NASA WDC USA due to his research work on ancient aircraft systems. At present, he is a team leader of 3 departments there. One is linguistics, second is ancient mathematics, and third one is ancient science. At present, he is associated with as a scientist at NASA, Goddard Center WC USA, the Parker Solar Probe mission. In January 2014, he got an offer from Eurasia, Germany, from translating rare ancient scripts and ancient books. He has been working for the same since January 2014. I think his introduction is really, really very interesting. Mitulji, how do you manage all these things? So many
projects, so many different areas. How do you manage? एक्चुअल में ऐसा देखा जाए तो लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरे पास टाइम ही टाइम है. Okay. So it is happening normally, ऐसा कुछ नहीं है. दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे कारवा बढ़ता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं, तो मेरा काम भी अपने आप वो मेरे लोगों के थ्रू हो रहा है, मेरी टीम के थ्रू हो रहा है. एंड थैंक्स टू माय टीम which is handling all the things. I am just delegating the orders and they are doing the things. So मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है. That's wonderful to say. But then, of course, the brain, these projects are your brainchild as well. Yeah. Then how do you manage your, because last time we had many queries about you, and I think I forwarded a few emails to you as well. They were really keen to know, because we started some of these topics like what is the definition of soul and what is the combination of soul, who implants thought into our cells, because in the physical form we are all cells. Yeah. Then where those thoughts are actually stored. So Yeah. today we have similar kind of questions where you will have to explain these things scientifically to our audience कि वो कैसे होता है. For example, let's start with what is the soul according to you? सबसे पहले तो मैं let me tell you first of all कि this theory is mine, only mine. ये मेरी थियरी है. So many persons ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक दफा ये जो मेरे दिमाग में था उसको मैंने साइंटिफिक लेवल पे कहीं काफी सारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के साथ और काफी सारे साइंटिस्ट के साथ भी ये मैंने डिस्कस किया है. और खास करके जो मेरी थियरी है that based on the plasmic theory. According to my point of view, what is soul? अगर हम एक बॉडी हैं तो ये बॉडी कैसे चलती है? तो ये बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे एक घर के अंदर लाइट जलाते हैं तो एक स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो घर के लिए एक सोल होती है. शायद कहीं ना कहीं से जो लाइट आती है या जो भी एनर्जी आती है, दैट इज वन सोल. तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो हमारे पूरे बॉडी को, पूरी सिस्टम को जो चलाती है, वो एनर्जी है, दैट इज सोल. No, but then how do you define the functionality of the soul? Because how come that small tiny thing is controlling the whole body? The size of the body is huge, right? But then we are controlled by that soul initially. उसके लिए मुझे मेरे हिसाब से लेट मी डिस्कस द होल थियरी. मैं शॉर्ट में मेरी जो थियरी है वो एक आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ. उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस या काफी सारे जो इश्यूज होंगे वो अपने आप बढ़ेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे. सी सिंपल चीज है. हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारी आत्मा जो है वो सूर्य से आती है और आखिर में सूर्य की तरफ चली जाती है. दैट इज द बेसिक फंक्शन, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. Now, who says that? Because in scriptures it is different, right? In Srimad Bhagavatam, 2nd chapter, it is different. In Bhagavad Gita, Krishna says that everything is part of me and I am part of everything. What is that part? Whose part? Whose part? Who is Vishnu? Vishnu is Aditya. Yeah. Vishnu is 10th Aditya. As in Vishnu is the creator. Actually, the Vishnu is the creator of that Aditya, no? Yeah, but what is the definition? What is the birth of history of birth of Vishnu? There is no birth of Vishnu, isn't it? He was always there. Are you talking about Mahavishnu or Vishnu? No, I'm talking about the Mahavishnu. Yes, I know the Vishnu and Mahavishnu is different. Okay. So we are then what is Mahavishnu? Then Mahavishnu is the main source of Udgam Sthan. Udgam Sthan means the source of energy. Main source of energy from where we are here. Okay. Now from that Vishnu, divine... from Mahavishnu there is Brahma. And from Brahma there is Brahman. And from Brahman we are. Yes. Okay. Ancestral of Brahma is Vishnu. Yeah. And we are descendant of Brahma is Vishnu. Yeah, obviously. Yeah. And from Vishnu we are. From Vishnu Manu, there is a Manu. Yes. And from Manu we are Manavas. Okay, so this is descendant, this is the theory, this is history
Okay, this is body. Okay, now what is Mahavishnu? Mahavishnu is a main energy, transformer. Okay. Okay, now from transformer there is small electricity, small line. Yes. Okay, so we are small atmas. We are Atma and he is Paramatma. Yeah. Yes. Atma and Paramatma. So Atma is a part of that Paramatma. Yes, that is the main theory. Yeah. And what is Paramatma? That is the soul, the creator of the soul. That is the whole energy. It might be the yeah. It is not creator. It is there. हम जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे स्काई के अंदर डिफरेंट सोलर सिस्टम में डिफरेंट सोलर सन्स हैं, अलग अलग 500 करोड़ सन है, तो फ्रॉम दैट सन हमारा जो एक सूर्य है, पृथ्वी के पास जो एक सूर्य है, हमारी जो एनर्जी है, हमारा सोल है, वो उस सन में से आता है. लेकिन वो सन जो है उसका मेन सोल कहाँ पे है, उसकी एनर्जी कहाँ पे है? तो दैट माइट बी द सेंटर ऑफ our मिल्की वे. जिसके आसपास हमारा पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, जिसको हम लोगों ने पूरा एक चक्कर पूरा घूम के वापिस आने में, जिसको हमने ये बोला है कि भाई इट विल बी वन चौकड़ी. एक चौकड़ी लगती है, जैसे चारों युग अगर हो जाते हैं तो वो एक टाइम फ्रेगमेंट है. तो वो किसके आसपास, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो मिडल पार्ट में से आती है. अब उसको वो कहाँ से आती है? वो एनर्जी कहाँ पे आती है? तो हम लोग एक से अपर स्टेज पे जैसे जैसे जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो अपर स्टेज है, दैट इज द मेन एनर्जी. ओके. अब ऐसे ब्रह्मांड भी काफी सारे होंगे, तो वो सारे ब्रह्मांड के जो सेंटर पॉइंट है उसको भी कहीं से एनर्जी मिल रही होगी, तो उसके लिए वो परमात्मा है. दैट इज मल्टीवर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स. मल्टीवर्स में भी वो कहां से एनर्जी आती है? तो वो जो अल्टीमेट एनर्जी हम जहां से आती है, जिसको हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं शिव, विच मीन्स नथिंग. हमें जिसके बारे में नथिंग मीन्स वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हमको उसके बारे में पता नहीं है. लेकिन एक अल्टीमेट एनर्जी जहां से आ रही है, पास ऑन हो रही है, तो दैट इज शिव. शिव, फ्रॉम शिव टू महाविष्णु, फ्रॉम महाविष्णु टू विष्णु, और महाविष्णु टू ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से फिर देन डिसेंडेंट्स. ओके. अब ये जो एनर्जी आ रही है, देयर इज अ मैटर एंड देयर इज एन एनर्जी. तो मैटर से क्या होता है कि बॉडी जनरेट होती है, सेल से बॉडी जनरेट होती है. लेकिन वो बॉडी के अंदर जो एनर्जी पास ऑन होती है, दैट एनर्जी इज आत्मा. अच्छा, अब ये एनर्जी कैसे पास ऑन होती है? तो क्या हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो 99.99% प्लाज्मा से बना हुआ है. Our whole ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज plasma. What is plasma? Plasma is the fourth stage of element. Fourth stage of element. Yeah, solid, liquid, gastric, and plasmic formation is fourth one. Okay, that is not taught in the school, I think so. Now it is. Now it is maybe. हाँ. जब मैं बच्चा था तब हमारे लिए 3 ही एलिमेंट थे, घन, प्रवाही, वायु. Yeah. Now there are 11 formation, different kind of formation, 11 elements, जिसमें से fourth one is plasmic formation. प्लाज्मिक फॉर्मेशन आप अगर शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब स्काई देखते हैं तो स्काई आपको रेडिश दिखता है, ब्लड रेडिश. दैट इज ड्यू टू द प्लाज्मा. तो ये जो पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो 99.99% प्लाज्मा से बना हुआ है. अब हमारे अर्थ के अंदर भी कभी कभी आप अगर देखेंगे तो जब थंडरस्टॉर्म होता है तो व्हाट इज हैपनिंग? थंडरस्टॉर्म होता है तो लाइटनिंग होती है. At the same time above the clouds what is happening? वहां पे भी लाइट्स होती हैं. That is called स्प्राइट लाइट. और हमारे साइंटिस्ट ने उसकी फोटोग्राफी और काफी सारे इमेजेस और काफी सारे वीडियोस भी ये स्प्राइट लाइट के लिए हुए हैं कि जैसे बिलो द क्लाउड्स देयर इज थंडरस्टॉर्म, एट द सेम टाइम अपर साइड पे स्प्राइट लाइट होती है. यानी एक एनर्जी के 2 अलग अलग छोरे एंड होते हैं, अपर वन एंड डाउन वन.
डाउन वन पे क्या होता है, दैट इज कोल्ड प्लाज्मा। जो कोल्ड प्लाज्मा से जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, और जो हॉट प्लाज्मा जो क्रिएट होता है दैट इज टुवर्ड्स द अपवर्ड। हमेशा जो हल्की चीज होती है, हॉट होती है, वो अपवर्ड ट्रेंड पे जाती है, और जो कोल्ड वन होती है वो डाउनवर्ड पे आती है, बिकॉज इट इज हैवी। हैवियर थिंग अर्थ की तरफ माइग्रेट होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब सेम थिंग, अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर कोल्ड प्लाज्मा और हॉट प्लाज्मा कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन इट इज देयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में वो दोनों प्लाज्मा है, हॉट प्लाज्मा एंड कोल्ड प्लाज्मा। नाउ इन अवर बॉडी देयर इज इंडा, पिंगड़ा एंड सुषुम्ना। इंडा एंड पिंगड़ा, हाँ, इंडा और पिंगड़ा के अंदर ये हॉट प्लाज्मा एंड कोल्ड प्लाज्मा कॉस्मिक एनर्जी थ्रू सहस्त्र द्वार से हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। What is सहस्त्र द्वार? सहस्त्र द्वार मींस द अपर पोर्शन। यहाँ पे हमारे बाल होते हैं, ये बाल, दिस इज अवर एंटेना दैट इज कैचिंग द एनर्जी। हमारे बाल जो होते हैं वो एनर्जी को कैच करते हैं, तो जो जिसके पास बाल है वो ज्यादा एनर्जी कैचअप करते हैं, दोज हु आर बाल्ड वो एनर्जी कम एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन एक छोटे छोटे बाल रखते हैं वो। आप अगर देखेंगे तो लामा होते हैं, वो छोटे छोटे बाल रखते हैं, राइट। हाँ, आपके बाल जितने छोटे हैं वो उस हिसाब से एनर्जी का जो डाइवर्जन है वो अलग अलग होता है। लेडीज होती हैं वो बाल लंबे रखते हैं, तो वो अलग एनर्जी है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, हेड से अपनी एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, और वो एनर्जी पूरे बॉडी के अंदर पास ऑन होती है। अब ये कैसे होता है, तो कि वहां से जो प्लाज्मिक एनर्जी जो हम एब्सॉर्ब करते हैं दैट इज कॉल्ड in spiritual language that is called cosmic energy. Okay. Or in scientific language it is called plasmic energy, plasmic rays. That plasmic rays we are accepting, and वो plasmic rays इंडा और पिंगड़ा के अंदर hot plasma and cold plasma के थ्रू अलग अलग separately enter होते हैं। सुषुम्ना में जब ये दोनों मिलके एंटर होके कंबाइन होके उसका कॉम्बिनेशन होता है, तब क्या होता है, एट दैट टाइम एनर्जी का फ्लो शुरू होता है। यानी लाइट हम जो लाइट लगाते हैं वो स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे ही वो प्लाज्मा हमारा मिक्स हुआ तो वो स्विच ऑन हुआ तो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन इन अवर बॉडी, हमारे हार्ट के पास एक वाल्व होता है, उसको सबसे पहले वो एनर्जी जर्क कर देती है तो वो स्टार्ट होता है, अप डाउन होता है। जैसे ही अप डाउन होता है तो प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में है यानी कि ब्लड, वो ब्लड का सर्कुलेशन शुरू होता है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हुआ, क्योंकि वो गेट ओपन हुआ तो उसका सर्कुलेशन शुरू हुआ। जैसे ही सर्कुलेशन शुरू हुआ तो पंपिंग शुरू हुआ। पंपिंग मींस दैट इज थ्रू योर हार्ट। तो वो हार्ट को वो एनर्जी मिली, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिली। अब हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ीज हैं, तो देयर आर 107 और 108 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। लेकिन ये जो हजार नाड़ी का जो एक गुच्छा होता है, जहां पे एक गांठ होती है, वहां पे एनर्जी पॉइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट का जो सेंटर है दैट इज हार्ट। लेकिन ये अलग अलग बॉडी के अंदर 72 ऐसे पॉइंट है जहां पे ये पूरी एनर्जी हमारी सर्कुलेट होती है, और जहां पे ये पूरी एनर्जी घूमती रहती है। जब तक ये एनर्जी घूमती रहती है तब तक जो कोश है, सेल्स हैं, वो जनरेट होते हैं। एवरी 40 डेज ओल्ड कोश डिस्ट्रॉय होते हैं, नए कोश जनरेट होते हैं। ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू दैट एनर्जी सर्कल। जहां पे कि एवरी 40 डेज अवर बॉडी चेंजेस, ये उसी का। अच्छा, ओके। और अगर आप देखेंगे तो कहीं पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कोई होली प्लेस पे आपको 40, नॉर्मली हम 15 डेज अभी धीरे धीरे कर दिया है, लेकिन अगर आप कहीं कोई साधु संत के साथ बैठेंगे और उनको बताएंगे तो he will not allow you to enter his ashram up till 40 days. Right. क्योंकि ये जो रीजनरेशन होता है वो 40 डेज का जो जनरेशन होता है, वहां पे हम जो डेड बॉडी के साथ जो मिलके आते हैं, या तो वो एनर्जी के थ्रू जाके आते हैं, या तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है दैट इज इन अवर बॉडी अप टू 40 डेज। आफ्टर 40 डेज इट विल बी रीजनरेटेड। तो वो जो एविल एनर्जी है वो हमारे बॉडी में से, या नेगेटिव एनर्जी है, दैट विल रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी आफ्टर 40 डेज, और न्यू सेल्स विल बी जनरेटेड। तो वो जो न्यू सेल की जनरेशन है, so this is very similar to जब भी नया बच्चा होता है तो माँ को 40 दिन तक जैसे कि आपको
अलग रहना है, हाँ एंड श्राद्ध का जो टाइम है वो भी 40 डेज का होता है. जी. So I think our tradition is actually scientific, right? या दैट इज साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक. Oh. उसके बाद क्या होता है, जैसे ये पंपिंग शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ, सर्किट आपकी चालू हो गई. जब तक ये सर्किट चालू है, दैट अब वो सर्किट क्या करती है, एनर्जी कहां से लेती है? तो वी आर टेकिंग ब्रीथ. व्हाट वी आर टेकिंग, मैक्सिमम पोर्शन इज ऑक्सीजन. what is that oxygen? That is plasmic formation in the atmosphere. तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वहां से हम प्लाज्मा एब्सॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर, और वो प्लाज्मा कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी को सर्कुलेट करता रहता है. एंड वो जो सर्कुलेशन जो होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आत्मा इन आवर बॉडी. यानी कई लोग बोलते हैं कि भाई आत्मा यहाँ पे रहता है, आत्मा दिमाग पे रहता है, ब्रेन में रहता है, हार्ट में रहता है. इट इज नॉट हैपनिंग. आत्मा हमारी पूरी बॉडी में रहता है. नो, अगर पूरे बॉडी में रहता है तो व्हेन यू नो इफ समबडी मीट्स विद एन एक्सीडेंट और उसका हाथ कट जाता है, तो जो हाथ कटा हुआ है उसके अंदर तो फिर वो सोल नहीं रहता ना. नहीं, वो हार्ट जो बॉडी से पार्ट अलग हो गया, तो बाकी के पोर्शन अगर आप देखिए, जिसका कोई एक पार्ट अगर नहीं है, जिसका कोई एक अंग नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी जो दूसरी एनर्जी है, दूसरा जो एक्सपर्टाइजेशन है, वो अपने आप जनरेट हो जाता है. जो हाथ से काम नहीं कर सकता है, वो पांव से ज्यादा काम कर सकता है. राइट. तो वो एनर्जी पांव में डाइवर्ट हो जाती है. दैट एनर्जी Okay. डाइवर्ट्स. Go with that body part, right? या It does. या Okay, so then tell me how come then healthy body dies? Because I mean death अगर life आपने define कर दी, so now define the death. Why? normally what is the definition of health? Health is that you don't have any diseases. That is nowadays, so that is only considered to be a health. कि अगर आपकी body में कोई disease नहीं है, discomfort नहीं है, that is health. डेथ कब होती है? Exactly, that is what I'm asking. Even the healthy body, which is defined healthy. डेथ मीन्स अगर आप देखिए, डेथ मीन्स जिसका जो रीजनरेशन है ना, बॉडी का जो सेल्स का रीजनरेशन है, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है. तो इट हैपन्स बिफोर सम डेज. डेथ ऐसे ही नहीं आती है, उसका रीजनरेशन बंद हो जाता है. कहीं ना कोई प्रॉब्लम उसके बॉडी में. हम अगर बोलते हैं हमें दिखता नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि ही इज हेल्दी. वो चल रहा है, वो नॉर्मल बात कर रहा है, वो हमारे साथ. अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले, करीब 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, एक बंदे से मैं मिलके आया था. सुबह मैं उसके साथ मीटिंग किया, 4 बजे मैंने उसके साथ बात किया, रात को 3 बजे उसको हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड. और हम लोगों ने 1 महीने का और 1 साल का अलग अलग प्रोग्राम प्लान किया हुआ था कि भाई हम आगे इस तरह से काम करेंगे. अब वो कहीं से भी कोई भी एंगल से हमें ये डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है ऐसा दिख ही नहीं रहा था. लेकिन क्या होता है, जब धीरे धीरे पता चला, उसके घर वालों से बात किया, तो कुछ ना कुछ छोटी बीमारियां, उसको हेडेक रहता था, उसको ये चीज थी, उसको वो चीज थी, ऐसा धीरे काफी सारी चीजें छोटी पता चली. तो वो सिम्टम्स है कि वो सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं, हमें नहीं पता है, हमें लगता है कि वी आर हेल्दी. जैसे सिर दर्द हो रहा है, जैसे जुकाम हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग प्रोटीन. कभी एक्सेस प्रोटीन ले लेते हैं. अब वो एक्सेस प्रोटीन जब हम लेते हैं, तो बॉडी में से जो डेड सेल्स हैं उसका जो निकाल है, एक्सेस प्रोटीन हो जाता है, तो डेड सेल्स का निकाल जो है वो बंद हो जाता है. वो एक जगह पे ट्यूमर बन जाता है बॉडी में, हमें पता ही नहीं चलता है. इट कन्वर्ट्स इनटू कैंसर. लेकिन यहाँ पे कैंसर तक ये स्टेज नहीं आता है. वो कभी क्या होता है, तो आपकी जो वेन है वो ब्लॉक कर देता है, तो इट हैपेंस, आपको स्ट्रोक आ जाता है. एनर्जी जो आपकी एक जगह पे जो घूमती है, वो एनर्जी जब वहां पे स्ट्रक हो जाती है, जैसे ये 72 पॉइंट्स पे जो एनर्जी घूमती है, वो एनर्जी अगर स्ट्रक हो जाती है, और आपका जो पंपिंग कोई जगह पे ऐसा होता है कि जहां पे आपका पंपिंग को वो अफेक्ट करती है, तो पंपिंग आपका बंद हो जाता है, तो दैट क्रिएट्स द इमीडिएट डेथ. तो वहां पे हम ऐसा बोलते हैं कि हेल्दी पर्सन को. और वो कब होता है, तो कि जैसे नॉर्मल अगर आप हाथ या पांव में वहां पे अगर आपकी एनर्जी स्ट्रक होती है, तो ऐसा इश्यू नहीं होता है. लेकिन मेन जो सोर्स आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी नर्वस सिस्टम है, उसमें कहीं कोई जगह पे ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, तो आपकी वहां की जो एनर्जी है वो पंपिंग को इफेक्ट करता है. और पंपिंग अगर बंद हुआ, तो वो एनर्जी को क्रिएट करना बंद कर देगा. यानी लाइट, अगर आपका एक कनेक्शन कट गया, तो लाइट आप जलाएंगे, लाइट ऑन करेंगे, फिर भी लाइट ऑन नहीं होगी. स्विच ऑन करेंगे, फिर भी लाइट ऑन नहीं होगी. Right. Same thing is happening with our body.
So then what happens to that energy when it leaves one body? As in soul का क्या होता है after that death? जैसे गरुड़ पुराण में बहुत सारे steps दिखाए हैं. So how I'm sure you must have gone through गरुड़ पुराण के या steps दिखाया है. So please explain that same thing in scientific language. अब उसको आगे बढ़ते हैं. जैसे ये हॉट प्लाज्मा और कोल्ड प्लाज्मा जो मिक्स होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी बॉडी में. जब तक हम जिंदा है तब तक वो मिक्स होता रहता है सुषुम्ना में. जिस वक्त ये एक दूसरे से मिक्स होना बंद कर देता है हम बोलते हैं कि भाई ये क्रिएशन ऑफ सोल बंद हो गया. अब क्या होता है कि जो हॉट एनर्जी और कोल्ड एनर्जी हमारे जो बॉडी में है वो वहां से जितनी भी स्टोर हुई थी वो वहां से बाहर निकल जाती है. either through your nose, either through your ears or through your eyes, कहीं से भी. हम बोलते हैं कि भाई आत्मा कहाँ से निकली, तो क्या आंखों से निकली, कान से निकली, मुंह से निकली. तो वो धीरे धीरे कहीं से भी अपना रास्ता लेके वो बाहर निकल जाती है. अब ये इसमें हॉट प्लाज्मा और कोल्ड प्लाज्मा दो अलग अलग स्टेज हैं, वो बाहर निकलते हैं. अब जो हॉट प्लाज्मा है दैट वेंट थ्रू द सन, वो अपर साइड पे सन की तरफ जाते हैं. और जो कोल्ड प्लाज्मा है इट कंटेन्स वाटर जिसमें बेज होता है. तो वो जमीन के हमारे पृथ्वी के आसपास वो घूमती रहती है. अब वाटर के अंदर साइंटिफिकली अभी ये प्रूव हुआ है कि जिसमें मेमोरी स्टोर होती है. तो हमारे पूरे लाइफ की जो मेमोरी है ना, जो हमने किया है जो नहीं किया है, वो सारी जो मेमोरी है वो कोल्ड प्लाज्मा में जो वाटर एलिमेंट्स है उसके अंदर वो स्टोर होके पृथ्वी के आसपास घूमती है. और जो हॉट प्लाज्मा है वो सूर्य की तरफ अपर साइड पे वापस चला जाता है. अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट ये जो रेज आते हैं जिसको हम रजकण बोलते हैं, रजकण के थ्रू ये जो रेज आते हैं वो रेज हम दूसरी बॉडी में जब मिक्स होते हैं तब वो कोल्ड प्लाज्मा है और ऊपर से आया हुआ जो नया जो हॉट प्लाज्मा है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके किसी और बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस बर्थ की जो एनर्जी थी, जो मेमोरी थी, वो दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट होती है. But we don't remember our previous life. नहीं, काफी सारे ऐसे किस्से हैं. और एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसने ऐसे 600 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए हैं कि देयर आर प्री बर्थ. rebirth लेकिन rebirth लेकिन देयर व्हाट इज मतलब हमारे पास प्रीवियस लाइफ की मेमोरी तो नहीं होती है. कई लोगों को होती है. और हम जब 1.5 साल तक के होते हैं तो हमारे पास भी वो प्रीवियस मेमोरी होती है. ग्रेजुअली हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं. लेकिन 1.5 साल तक बच्चों में ऐसा बोला जाता है. हमारे एंशिएंट टेक्स्चर्स ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि 1.5 साल तक का बच्चा जो है, याज्ञवल्क्य जी ने ये लिखा हुआ है, उन्होंने भी लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य जी ने शुक्ल यजुर्वेद में कि 1.5 साल तक बच्चे को मेमोरी याद रहती है प्रीवियस बर्थ की. ओके, बट लेकिन मेमोरी नहीं रहती, लेकिन उसके संस्कार रह जाते हैं. संस्कार रहते हैं, संस्कार रहते हैं. कभी कभी फियर भी रहता है ना. आप देखिए ना, आपको पानी से डर लगता है, वाई? वो संस्कार नहीं है ना. दैट इज नॉट संस्कार. हमारे अंदर संस्कार, हम जो वो 16 संस्कार बोलते हैं, एक्सेप्ट दैट संस्कार देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन रिमेंबर. लाइक जैसे फियर, हैप्पी मोमेंट्स. फियर हमारे इस जन्म में हमारी लिविंग स्टाइल को अफेक्ट करते हैं. ओके, एंड व्हाट अबाउट भक्ति? बिकॉज़ पीपल से कि अगर आपने वर्शिप किया है या आपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा है तो दैट रिमेन्स, वो आगे कंटिन्यू करती है. वो आगे कंटिन्यू करती है. इवन दो ये जो मैंने आपने जो अभी बताया कि भाई आई एम डिकोडिंग एंशिएंट 45 लैंग्वेजेस, अब वो मेरे पूर्व जन्म में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. अब ये जन्म में मैं जब वापस आया तो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम अ कंप्यूटर, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. मेरे अंदर सारे सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होके आए हुए हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जहां पे जो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया वो प्रोग्रामिंग चालू हो गया. सिंपल. तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे में वो प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो गया है. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्रांसलेटिंग एंशिएंट 45 लैंग्वेजेस. नहीं, लेकिन वो हमारे बॉडी के कौन से सेल में स्टोर है? दैट अगेन इन कोल्ड प्लाज्मा की हॉट प्लाज्मा, द वे कोल्ड प्लाज्मा प्लाज्मा व्हिच रिमेन्स हियर ऑन दिस अर्थ. या, और वो कोल्ड प्लाज्मा जो है वो सीधा हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इट इज इन आवर माइंड. क्योंकि वो आता कहां से है? थ्रू योर माइंड. दैट फर्स्ट गेट इज, व्हाट इज द फर्स्ट गेट? I don't know. You tell brain. me.
Sahasradwar is near our brain. Okay, so that Sahasradwar is the combination of pineal gland and pituitary gland. Okay, that is very interesting. Quite confusing. No, not confusing. I'm very clear of. I am trying to explain it in a simple way. Yes, that's why I'm saying that the way you are explaining is amazing, because I'm just not lost. But then I still have more questions. Yeah, so you can go ahead. Because our today's main topic is moksha. Moksha is a scientific process, right? So now how do you define moksha? Because many sampradayas, we have, especially the cult or the sampradayas which are born out of Indian Vedic philosophies, they have their definition of moksha. How do you define that? What they are saying? They say कि लाइफ, अपना जो सोल है वो जब लाइफ एंड डेथ के सर्कल में से निकल जाता है एंड इट गोज टू वन प्लेस फ्रॉम वेयर इट्स नॉट कमिंग बैक इज मोक्ष एज पर जैनिज्म. नाउ ऑल द वैष्णव आचार्यस दे वुड से कि एक वैकुंठ है जहाँ पे हमारा यहाँ से निकलने के बाद अगर वहां पे वास मिलता है तो दैट इज अवर प्लेस, दैट इज अवर मोक्ष, और दैट इज अवर, वी से वैकुंठ वासी हो गए. नाउ शिवापंथी देश है कि उनको कैलाश मिल गया, कैलाश और शिवलोक. शिवलोक मिल गया, या एग्जैक्टली. बुद्धिस्ट से कि उनको निर्वाण एंड महानिर्वाण, Nirvana, they call it as. Yeah. So there, the basic remains same, that you are free from the cycle of life and death. Yeah. But how do you define moksha then? हमारे अंदर 84 लाख योनि जो बोली गई है वो क्या है? Okay, that is different species. When we go, one soul goes through different species and it grows from. After ending 84 lakh yoni, what will happen? Then if your karma is attached to your soul, then you go back to the same cycle. How karma is attached? When we are in animal format or in insect format, how karma is affected? That is obviously through our karma, as in karma, no? That is our attachment is with the desire, of course. See, कर्मा की अगर हम बात करें कि जो इनोसेंटली हम लोगों को जो पता नहीं है that we are doing, तो वहां पे तो कर्मा अटैच ही नहीं होता है. तो एनिमल फॉर्मेट में या तो इंसेक्ट फॉर्म में हम कहीं पे भी वो चीज हमारे लिए अफेक्ट करती नहीं है. तो हम एक यूनि से दूसरी यूनि में, दूसरी यूनि से तीसरी यूनि में, तीसरी से चौथी में जो जाते हैं, लास्ट 3 लाख यूनि इज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जो लास्ट 3 लाख यूनि है वो ह्यूमन बीइंग की है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है. और वो 3 लाख योनि जो है उसके अंदर जब हम जो भी कार्य करते हैं तो वहां पे कर्म हमें इफेक्ट करता है. उससे पहले तो हम जो भी सारी बातें करते हैं 81 लाख योनि में, वहां पे तो कहीं कर्म हमें अफेक्ट करता ही नहीं है. कर्म नहीं, लेकिन नेचर अफेक्ट करता होगा ना, कि आपने अगर पास किया छोटा अमीबा से अगर वो एलिफेंट बनता है तो उसका ग्रोथ, मान लो इफ दैट इज डिफाइंड एज ग्रोथ, कि वो छोटे से बड़ा हुआ, तो वो कुछ ना कुछ तो उसको, नेचर मींस प्रकृति, नेचर मींस प्रकृति. सो जब 81 लाख योनि के अंदर जब प्रकृति नेचर अगर अफेक्ट करता है तो बट नेचर है कि बाकी के 3 लाख योनि में भी जो मेजर अफेक्ट जो होगा वो भी ड्यू टू नेचर. व्हाट वी आर डूइंग अवर कर्म, दैट इज आल्सो अवर नेचर. यस, सो नाउ यू आर ऑन द पॉइंट, दैट इज नेचर. अब व्हाट इज मोक्ष? व्हाट इज मोक्ष? ये जो नेचर है वो नेचर की एक पूरी एक सिस्टम है कि भाई ये वो नेचर जनरेट हुआ, अपनी प्रोसेस से पास हुआ, एक्सपायर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीज छोड़ के गया. जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष जन्मा, बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ और धीरे धीरे वो मर गया, लेकिन उसका जो बीज था, वो फल जो था, वो कहीं ना कहीं जमीन पे गिरा था, तो उसमें से नया पेड़ जनरेट हुआ. वो पेड़ जो नया पेड़ हुआ वो नया पेड़ है, वो पेड़ तो है नहीं. ठीक है. तो वैसे ही व्हाट इज मोक्ष? तो क्या हमने जो एक प्रोसेस जो की, जो ये जो कोल्ड प्लाज्मा था, वो कोल्ड प्लाज्मा ऐसे अलग अलग स्टेज से पास होते होते 84 लाख योनि क्रॉस कर गया. अब क्या होता है कि वहां पे वो धीरे धीरे ड्राई हो गया, क्योंकि उसमें से जो वाटर एलिमेंट था वो धीरे धीरे ड्यू टू द नेचर, ड्यू टू द हॉट हीट और ड्यू टू द एनी रीजन, हम उसको फायर भी देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसमें से जो वाटर एलिमेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है. तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कोल्ड प्लाज्मा कंप्लीट हो जाता है, तो वहां का जो बाकी जो रिमेनिंग प्लाज्मा है दैट विल बी हॉट प्लाज्मा.
वाटर जब उसमें से निकल गया तो वो धीरे धीरे गर्मी पकड़ना शुरू कर देता है। नेचर के साथ वो एयर या तो स्पेस के साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है और इट वेंट टू द स्पेस। अगेन दैट इज हॉट प्लाज्मा। अब कहीं और जो हॉट प्लाज्मा है उसके साथ ये हॉट प्लाज्मा आके वापस कंबाइन होता है, तो दैट इज न्यू वृक्ष, दैट इज न्यू ट्री। यानी वो बॉडी का ये जो 84 लाख योनि का जो कर्म था या जो जो ड्यूटी थी, दैट इज कंप्लीटेड। तो दैट इज मोक्ष। भाई वहां से उसको ये काम खत्म हो गया। अब वो नए बॉडी के साथ या नई प्लाज्मा के साथ कंबाइन होता है, तो दैट इज न्यू फॉर्मेशन। वहां से उसकी मेमोरी भी खत्म हो गई। तो दैट एंड ऑफ दैट मेमोरी मीन्स दैट इज मोक्ष। निर्वाणा मीन्स ज्ञान एंड महानिर्वाणा मीन्स आज ही मैं ओशो को समझ रहा था, ओशो को सुन रहा था, तो ओशो कहीं पे यही बोल रहे थे कि देयर इज 2 स्टेज, निर्वाण एंड महानिर्वाण। निर्वाण मीन्स जहां पे ज्ञान मिलता है और यानी मुक्ति मिलती है, बाकी संसारिक कर्मों से मुक्ति मिलती है। एंड व्हाट इज महानिर्वाण? तो कि जहां से ये सोल मुक्ति लेता है, यानी वो आगे कहीं पे भी बढ़ता नहीं है, उसको वो मेमोरी भी नहीं है उसके पास, ना उसके पास कर्म है, ना उसके पास वो नेचर का अफेक्शन है, कुछ भी नहीं है। अब वो एक नए स्टेज में जाता है और वहां से एक नई बॉडी पकड़ता है, वहां से एक नया आत्मा होता है, नया प्लाज्मिक फॉर्मेशन होता है। So according to my point of view, in single way, it is a new plasmic formation. 84 lakh yoni is first plasmic formation, and second plasmic formation is a new plasmic formation. जब end of first plasmic formation होता है, तो that is called moksha. No, but then as per Jainism, the concept of moksha is very clear that you are not forming any life again and you're not coming back to this cycle. The whole nature ka cycle jo hai, you're not coming back to that cycle. So then what you are defining is maybe you are talking about one era, one cycle of Brahma, or 4 yugas are getting over and then we are coming back. Either Jainism is correct or Hinduism is correct. क्योंकि हिंदुइज्म में ये लिखा है कि प्रलय के बाद वापस रिसर्जन होता है, सर्जन होता है। तो अगर मोक्ष मिल जाता है तो कहीं पे किसी का कोई सर्जन ही नहीं होगा। तो मोक्ष सभी को थोड़ी मिलता है ना, दैट इज अ थिंग। ऐसा तो नहीं है ना। जब एक महाप्रलय आएगा तो व्हाट विल हैपन? हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में अलग अलग प्रलय की जो बात की है, उसमें आखिर में जो महाप्रलय है, तो महाप्रलय में क्या होगा? तो कि सारी चीजें एक दूसरे में वापस वो एक पॉइंट में सम्मिलित हो जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। परमात्मा में मिल गया यानी सबको मोक्ष मिल गया जी। तो फिर से सर्जन क्यों होगा? Okay, so their philosophical difference is there. So the word moksha which we say, मतलब जो आजकल सबसे ज्यादा selling point है, even in other religion, they say कि ये मिलेगा वो मिलेगा। मेन चीज वो है जो मैंने बोला कि प्लाज्मिक फॉर्मेशन जो एक होता है वो वहां पे खत्म हो जाता है, नया प्लाज्मिक फॉर्मेशन आ जाता है। यानी अगेन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म भी वो चीज अगर उसके साथ कनेक्ट करे, तो जो फर्स्ट प्लाज्मिक फॉर्मेशन था यानी फर्स्ट बॉडी था, फर्स्ट मितुल त्रिवेदी था, वो अलग अलग 84 लाख योनि से पास हो गया। अब उसको वहां से मान लो कि उसका प्लाज्मा है वो अगर ड्राई हो जाता है तो नया बॉडी फॉर्मेशन होता है, लेकिन ड्राई नहीं होता है तो इट अगेन रीस्टार्ट। नो, तो लेकिन मोक्ष यू मीन सबको मिलता है, क्योंकि सब वो अगर महाप्रलय में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिल ही जाता है मोक्ष, तो सबको मिले, आखिर में तो सबको मोक्ष मिलता ही है, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो ट्री है, एवरी लिविंग। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, यूनिवर्स जब शुरू हुआ तो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग हम दो अलग अलग पार्ट करते हैं, वो दोनों कहां से आई? आई थिंक इट इज डिफाइंड, इट इज फ्रॉम एटम, इट इज फ्रॉम एटम। लेकिन इट वाज डिफाइंड के किसी ऋषि ने बनाया, कश्यप ने ये बनाया, ये नहीं, कश्यप ने बनाया नहीं, कश्यप से तो ह्यूमन बीइंग जनरेट हुई, कश्यप से तो आगे बढ़ी, हाँ मतलब जनरेशन आगे बढ़ी, कश्यप से तो जनरेशन आगे बढ़ी। नहीं, अगर हमारा गोत्र के हिसाब से अगर देखने जाए तो कश्यप के पुत्र है। ऑल क्या कहते हैं, चांडाल और जितने भी इंसेक्ट और वो सब है ना, उनके क्रिएटर है। और बाकी के अलग अलग भारद्वाज है कि जो है हमारा गोत्र है, उसके हिसाब से दे आर द क्रिएटर ऑफ दोज थिंग्स इन द यूनिवर्स। सो माय क्वेश्चन इज कि ये जो जिसने क्रिएट जहां से हुए हैं, सो आप जैसे कहते हो ना कि कहां से आई, तो फॉर मी फर्स्ट वुड बी अवर गोत्र जहां से आया,
उसके पहले तो जैसे आपने डिफाइन किया कश्यप कहाँ से आए? हाँ एग्जैक्टली, सो फ्रॉम देयर देन यू गो मरीचि. अपवर्ड। Now what is Marichi? What is Marichi? What is Kashyap? Kashyap is a Milky Way. ओके As per our ancient texture, Kashyap is a Milky Way. Our old name of our Milky Way was Kashyapa, and two ends of that Kashyapa, that Milky Way, was Diti and Aditi. हाँ, so And they, yes, on the Aditi side, there is a solar system. So we are on the Aditi side of our Milky Way, as per the ancient textures. Now the rename is जैसे एक बात करते हैं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पुराना नाम था दैट वाज शिवदान, लेकिन शिवदान में से जो अपभ्रंश होकर सुदान हो गया, दैट इज अ कंट्री एट प्रेजेंट. तो हमने भी जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स के अंदर जो अलग अलग नाम जो हमें मिलते हैं, वो नाम कहीं ना कहीं कॉस्मोलॉजिकल इवेंट है, या तो फिर साइंटिफिकल इवेंट है, या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं. और वो हमने कैरेक्टर के थ्रू हमने क्या किया कि उसको समझना शुरू किया. अब वो कैरेक्टर हमारे लिए एक ह्यूमन बीइंग बन गया. आज हम क्या बोलते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग थे, और वो जो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट है दैट वाज अ माइथोलॉजी. राइट. और माइथोलॉजी ह्यूमन जो है वो भी कहीं एग्जिस्ट तो करते नहीं है. हमने तो वो सफेद हरण हमने नहीं देखा है. हाउ कैन वी प्रूव दैट? So that's why it is mythology, but that does not mean that it was a mythology. आपने नहीं देखा है तो वो mythology ऐसा नहीं है. Okay, तो then अगर आप कहते हैं कि आत्मा the soul goes to the sun, तो अगर महाप्रलय जो है तो उसमें सारे ये सन भी खत्म हो जाते हैं. सारे खत्म हो जाते हैं. हाँ, सारे सन भी खत्म हो जाते हैं, सारे ब्रह्मांड भी खत्म हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक शिव तत्व जो है उसमें विलीन हो जाते हैं. सबसे पहले वापिस शिव तत्व उसमें से अलग होता है. शिव तत्व में से सारे अलग अलग महाविष्णु अलग होते हैं, और महाविष्णु में से फिर अलग अलग हिरण्यगर्भ जो क्रिएट होते हैं, वो हिरण्यगर्भ से अलग अलग यूनिवर्स क्रिएट होते हैं. तो हिरण्यगर्भ का आपने कहा, उससे मुझे ध्यान में आया कि ये तो हमारे बहुत सारे श्लोकों में भी डिफाइन किया हुआ है कि हिरण्यगर्भ से हमारा वो है. So then you or the modern scientist is not able to read this because they believe in the Big Bang theory. तो अब Big Bang theory क्या है फिर? नहीं, हमारे साइंस भी अलग अलग 10 थियरी को बिलीव करते हैं. बिग बैंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी एट प्रेजेंट, लेकिन साइंस भी अलग अलग 10 थियरी को एक्सेप्ट करते हैं. उसमें हमारी वैदिक थियरी भी दे आर एक्सेप्टिंग कि देयर इज वन मोर थियरी दैट इज वैदिक थियरी. तो उसके अंदर भी वो एक्सेप्ट करते हैं. बिग बैंग के अंदर जो बातें करते हैं वो ये बातें हैं कि भाई जो एक छोटी सी चीज थी उसमें से प्रलय हुआ, उसमें से एक्सपांशन हुआ, और वो एक्सपांशन इतना हुआ कि आज यूनिवर्स बढ़ रहा है. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि अगेन इट विल सिंक्रोनाइज, यानी फ्यूजन एंड एंटी फ्यूजन वाली जो सिस्टम है दैट इज बिग बैंग. लेकिन बिग बैंग में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं. हिरण्यगर्भ की जो बात करें तो हिरण्यगर्भ वाज also the theory of the one theory of Hiranyagarbha is also there are again 10 theories of Hiranyagarbha. And out of that 10 theories there is one theory, it is called Big Bang. लेकिन विष्णु पुराण में जो एक थियरी दी गई है वो दैट इज अगेन डिफरेंट. वेदों में ऋग्वेद में जो दी गई है दैट इज अगेन डिफरेंट. लेकिन हिरण्यगर्भ मींस व्हाट, कि जिसमें से ये सृष्टि एक जो सेंटर पॉइंट था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन उसको एनर्जी कहां से मिली? उसको एनर्जी कहां से मिली? इफ देयर इज नथिंग तो उसको वो कुछ तो हुआ होगा ना, उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो एनर्जी मिली ना. तो वो एनर्जी कहां से मिली? तो हम अगर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को और ये एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो वो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो यूनिवर्स के अंदर जो टाइम, उसके बाद टाइम एंड स्पेस शुरू हुआ. तो वो टाइम को हम वी आर कॉलिंग काल. एंड उसके अंदर जो एनर्जी है जिसकी वजह से ये पूरे जो सारी चीज जो एक्सपांड हो रही है दैट इज कॉल्ड काली. लेकिन जहां पे वो जो शैव तत्व था या जो एनर्जी थी, जो पूरा एक बीज था, हिरण्यगर्भ था, उसको जो एनर्जी वहां पे मिली, तो बियॉन्ड द यूनिवर्स देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस. यस. जो टाइम नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड महाकाल. यानी काल इज
inner side of universe and Mahakal is outer side of universe. And Obviously, Kali is inner side of energy and Mahakali is outer side of energy. but that is what we defined as we personify them, right? So Yeah, Mahakal, we personify Shiv as Mahakal, which is yeah, he's the outer energy of the whole creation. You mean yeah, yeah. how we It is call it? also, it is outer element and Mahakali is outer energy. Outer energy. Okay, so then where did we come from? Because see, there is one theory of where Mahakali and Mahadev, as in they conceived, and then from there we came into That being. is multiverse. That is the stage of multiverse. हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स है, उससे अगर आप बाहर जाएंगे तो दैट इज अ मल्टीवर्स. मल्टीवर्स भी कहां से है? तो क्या ऐसे 7 यूनिवर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर 7 यूनिवर्स का बंच होता है. तो 7 यूनिवर्स के बाहर भी और कुछ है. तो वो स्टेज हमारे स्क्रिप्चर्स में अलग अलग स्टेज दिए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये अलग अलग लोग की जो बात करते हैं, 7 आकाश 7 पाताल 7 लोग, विष्णु लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, शैव लोग. तो ये जो सारे हैं, दिस इज द स्टेज. और ये जो स्टेज है वो साइंटिफिकली अभी हमारे पास, हम लोग तो अभी सोलर सिस्टम से बाहर तक नहीं गए हैं. ओके. तो हमें ये स्टेज की साइंस को नहीं पता है. व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है. तो क्या हम जन्म से मृत्यु तक की साइंस में बात करते हैं. और हमारे जो धर्म है, हमारे जो ये स्पिरिचुअल अध्यात्म है, वो मृत्यु से जन्म की बात करते हैं. यानी अंत से आरंभ की बात करते हैं. और साइंस जो है वो आरंभ से अंत की बात करते हैं. Obviously that is limited ना. वो उनके पास क्या है, वो मटेरियलिस्टिक थियरी है, मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट है. लेकिन वो मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट के साथ जब तक शिव के साथ वो एनर्जी, शिव के साथ जब तक वो एनर्जी नहीं जुड़ती है, तब तक वो शिव नहीं बनते हैं. तब तक शिव भी शव है. यानी बॉडी है, एनर्जी है, एंड विदाउट एनर्जी ही इज ऑल्सो नथिंग. ओके. तो दिस इज कॉम्बिनेशन. So वही परम हमारा जो अर्धनारेश्वर का जो कंसेप्ट है वो भी वही है. No, but then abhi bhi this question is not answered clearly, because I still want to know then how did we how the atma gets the body. मतलब पहले eggs या वो बोलते हैं ना, पहले मुर्गी या अंडा, तो वो कहाँ से आया? अब जैसे ये मैंने आपको पूरा सोर्सेस बताया कि भाई अलग अलग जगह से सन के पास आया. सन से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर रजकण आते हैं, रेस के साथ रजकण आते हैं. वो रजकण अर्थ एलिमेंट के अंदर जनरेट होते हैं. और जो सनरेज आता है, वो सनरेज से वो हमारी बॉडी के अंदर क्वार्क के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आर पार काफी सारी चीजें निकल जाती है. ट्रांसपेरेंट ये क्वार्क हमारी बॉडी से पास ऑन हो जाता है. लेकिन वो उसके साथ साथ जो रजकण होते हैं या जो भी सोलर एनर्जी होती है, इट एंटर थ्रू अवर बॉडी, थ्रू अवर माइंड और थ्रू अवर सहस्त्र द्वार. और वहां से जो एंटर होते हैं, तो वहां से ये एक तो सबसे पहले जो ये जो पूरा बॉडी होता है, वो ऐसे छोटे छोटे रजकणों से या तो फिर हमारे जो शुक्राणु और ये जो है उससे बॉडी जनरेट होता है, पिंड जनरेट हुआ. और पिंड के अंदर यहां से ये जब आत्मा एंटर हुई आफ्टर 100. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. कभी होता है? अब वो मैं आपको बताता हूँ. हमारा बॉडी का बच्चा पेट में है ऐसा हमें पता चलता है. उसके बाद इतने दिन के बाद हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में हमारी लग्न कुंडली कब बनती है? 7वें महीने में. 120 days. Okay, so which is 3 months. See, 9 month का जो बाइफर्केशन है वो कैसा है? 120 and 150 days. हाँ. ठीक है. 120 days यानी 4 महीने हुए. हाँ. 4 महीने के बाद सोल एंटर होता है पिंड के अंदर. क्योंकि 4 महीने के बाद हमारा पिंड पूरा शेप जनरेट कर लेता है. तब तक वो कौन सी एनर्जी से बनता है? बिकॉज पिंड इज स्टिल ग्रोइंग ना. वो बना ना, वो कहाँ से बना फिर? वो अलग अलग, जैसे हमारे जो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग अलग कंबाइन होते हैं. और जो एक हमारा बीम जो हम जिसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर वो दोनों फिक्स करके उसके अंदर वो जो बनता है ना, गर्भाशय जो है, वो उसके अंदर वो शेप जनरेट होता है. हाँ. तो उसके अंदर वो शेप धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है और वो पूरा शेप 4 महीने के अंदर वो बॉडी बना लेती है.
जब वो पूरा शेप बन जाता है तब यहाँ पे हेड के थ्रू वो एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब करना शुरू करती है। तो एट दैट टाइम एनर्जी एंटर्स इनटू द बॉडी, यानी 120 दिन के बाद एनर्जी, हमारे सर के बाल शरीर के अंदर 120 दिन के बाद फर्स्ट ग्रो होना शुरू होते हैं, यानी वहां से वो ओपन होता है सहस्त्र द्वार, और वहां से वो एनर्जी शरीर के अंदर एंटर होना शुरू कर देती है, और वो आत्मा शुरू हुई, यानी 120 दिन के बाद आत्मा हुई, यानी वहां से हमारा जन्म हुआ, यानी शरीर का आत्मा के साथ लग्न हुआ। तो हम ज्योतिष में भी जो लग्न कुंडली बनाते हैं, दैट इज आफ्टर 120 डेज, और वो 150 डेज तक हमारे बॉडी में रहती है। उसके बाद 150 डेज, और उसके बाद वो बॉडी शरीर से बाहर आती है। जब बॉडी शरीर से बाहर आती है, मदर के वॉम में से बाहर आती है, तो व्हाट इज हैपनिंग, वो एक नाड़ी के साथ जुड़ के आती है। नाड़ी को आप काटते हैं, नाड़ी को कहां से काटा जाता है, मदर के नेवल के पास से या बच्चे के नेवल के पास से? आई थिंक बच्चे के नेवल के पास से वो नाड़ी को काटा जाता है। तो दैट इज, वो जब काटते हैं तो वहां पे एक आपका कमल शेप का एक मुख ओपन हो जाता है। तो दैट इज द बर्थ ऑफ ब्रह्मा, एंड मदर इज विष्णु, महाविष्णु इज मदर, उसका जो वोम्ब है दैट इज महाविष्णु। लेकिन वो महाविष्णु जो है वो कहां से आया, तो कि शिव तत्व मदर है, यानी मदर शिव तत्व है, वहां से महाविष्णु, महाविष्णु में से ब्रह्मा आया, और ब्रह्मा के अंदर वो एनर्जी एंटर होना शुरू हुआ। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये जो ब्रह्मांड है उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी है, प्लाज्मा है, वो एंटर होना उसके 120 दिन के बाद धीरे धीरे शुरू होता है। तो इट इज बिगिनिंग। ओके, सो कई बार मैंने सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इमीडिएटली रोता नहीं है। हाँ, तो व्हाई? उल्टा करके जब उसको, जब बच्चा बाहर निकल, जब माँ के पेट में होता है तब बच्चा ब्रीदिंग नहीं करता है, वो अंदर होता है, तो वो नस, उसकी जो नाड़ी होती है, नाड़ी से वो सरवाइव करता है। अब जब बच्चा बाहर निकलता है तो सबसे पहले क्या होता है, तो कि उसको वो जो एनर्जी का सोर्स था वो तो काट दिया हमने, अब उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? he has to breathe. He has to breathe. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे को उल्टा करके थपथपाते हैं। तो थपथपाते हैं तो वो रोना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, यानी ब्रीदिंग स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज बताइए, जैसे ही वो रोना स्टार्ट करता है, ब्रीदिंग शुरू हुआ, तो वो रोता है, तो हम क्या करते हैं? उसको उल्टा सीधा करके वी क्लीन देम, नो, उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? दूध फीडिंग करवाना होता है, फीडिंग करवाते हैं, या ड्राई वाटर जैसा हम कुछ पानी पिलाते हैं, वो किसी के साथ मिक्स करके। अब जैसे ही हमने उसको खाना खिलाया ना, तो वो क्या, खाना कन्वर्ट होना शुरू हो गया एनर्जी, या अब हमें जीने के लिए 3 चीजें चाहिए, हम नहीं देंगे तो भी वो वीकनेस के थ्रू मर जाएगा, पीछे से थपथपाया नहीं तो सांस नहीं लेगा तो भी मर जाएगा, पानी नहीं दिया तो भी मर जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल है वो बैलेंस नहीं होता है इनिशियल स्टेज में, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एटमोस्फियर प्रकृति के साथ धीरे धीरे सेट होता है। पहले जो प्रकृति थी वो अलग तरह की प्रकृति थी, अब जो वो प्रकृति है, वो माँ के पेट में जो प्रकृति थी वो अलग प्रकृति थी, अब जो प्रकृति है वो मेन प्रकृति है जिसके साथ वो टच में आया। पहले क्या था कि बच्चे को माँ कुछ बीमार है, दवाई जो देती है तो दवाई पानी के साथ या मध के साथ कुछ करके मिक्स करके पिलाती है, तो जब पेट में था तो वो इनडायरेक्ट एनर्जी थी, अब वो बाहर आया तो वो सीधा सनलाइट में आ गया, सोलर लाइट में आ गया, तो अब उसको अपर लेवल की एनर्जी चाहिए, अपर लेवल की वो सिस्टम चाहिए। तो वहां पे जब अपर लेवल की जो सिस्टम चाहिए उसके लिए उसने क्या किया, खाना पीना और सांस लेना, 3 चीजें शुरू की। अच्छा, खाना खाता है तो क्या होता है, खून बनता है, खून को हम लहू बोलते हैं, उसमें लोह आता है, लोह मींस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयन, आयन, पानी, और सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। 3 चीजें अगर आप नेचर बाहर अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या होता है, आयन को पानी में डालते हैं और ओपन एयर में रखते हैं तो क्या होता है, रस्टिंग, रस्टिंग, या
तो हमारे बॉडी में रस्टिंग शुरू नहीं होगा? होता है। वो रस्टिंग क्या है? दैट इज एजिंग प्रोसेस। दैट इज एजिंग प्रोसेस। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चा होता है ना, तब उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो फास्ट होती है। जब बुढ़ापा आता है ना, वो ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होती जाती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो दैट इज रस्टिंग। हम जैसे जैसे खाना खाते हैं ना, रस्टिंग प्रोसेस बढ़ती जाती है। यानी हम मरने के लिए बाहर आए हैं। यानी हम मरने के लिए खाना खाते हैं, जिंदा रहने के लिए नहीं करते हैं। व्हाट वी आर सेइंग, भाई हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए, लेकिन जीने के लिए नहीं, मरने के लिए चाहिए। So what is required for life? Then longer life सोलर के लिए लाइट, what is? सोलर एनर्जी डायरेक्ट। हम भी क्या करते हैं, सनलाइट जो है वो अर्थ पे गिरती है। अर्थ पे गिरती है तो वहां पे प्लांट्स के थ्रू या कहीं पे ये हमें खाना उगता है और वो खाना हम लोग पका के खाते हैं। तो दैट इज अगेन इनडायरेक्ट एनर्जी। दैट इज सेकंड लेवल एनर्जी। फर्स्ट लेवल जो एनर्जी थी, दैट वाज इन आवर वॉर्म, माँ के पेट में था। ये सेकंड लेवल की एनर्जी है कि वो जो अनाज उगता है, वो अनाज हम खाना खाते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट एनर्जी अगेन। लेकिन अगर आप सोलर लाइट डायरेक्ट लेते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ले ली, और वो अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, तो आपको खाने की और पीने की जरूरत नहीं है। बट ऐसे कोई बहुत पहले के टाइम पे योगीज आई नहीं, हर्ड। अभी जो अंबाजी में जो वो देवलोक हो गए हैं, चुंदरी वाले माता जी, और यूनिवर्स में अपने पृथ्वी पे ऐसे 16, भारत के अंदर ऐसे 16 अलग अलग और आदमी है जिससे, सोलर। हाँ, दे आर टेकिंग डायरेक्ट सोलर एनर्जी। वो लोग खाना नहीं खाते हैं। और कहीं अगर आप हिमालय की गुफा में या तो फिर ये गिरनार की गुफाओं में जाएंगे, तो कहाँ वहीं पे आपको काफी सारे साधु संत और ये सिद्ध योगी जो हैं, वो अभी भी ऐसे मिलते हैं। सो वो दे आर सब नॉट, फेक जो बोलते हैं कि वो ऐसी फेक स्टोरीज नहीं है, इट इज अ फैक्ट कि दे आर लिविंग ऑन ओनली ऑन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। तो हम लोग भी सोलर एनर्जी पे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है। हम वो सिस्टम में गिरे नहीं है। So what is the system? How do we get into that system? हमें बचपन से ही अगर डायरेक्ट वो सोलर एनर्जी की हैबिट दे दे, इंस्टेड ऑफ गिविंग द फूड, वो अगर हम सोलर एनर्जी की अगर हैबिट दे दे। हमारे पहले के समय में आप देखिए, बच्चों को थोड़ा सनलाइट में रखते थे जी। तो उसको खाने की जरूरत कम रहती थी, तो हेल्थ उसकी नॉर्मली अच्छी रहती थी। अब क्या है, हम लोग ये ड्राई वाटर फीडिंग देते हैं या जो भी कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे को बाहर नहीं ले जाने का। क्यों? सन से, धूप में इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, दैट इज इन्फेक्शन। ओपन में मत ले जाओ, इन्फेक्शन होगा। लेकिन 40 दिन तक आप ले जाइए, लेकिन घर के अंदर भी आप 40 दिन तक सनलाइट के अंदर रखते हैं पहले के समय में। अब तो 40 दिन नहीं, अब तो लोग 6-6 महीने तक बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं। बाहर निकालते हैं तो नहीं, बच्चों को एसी में रखना है, बंद कमरे में रखना है, इन्फेक्शन नहीं लगेगा। सनलाइट मिलती ही नहीं है। आप जितना सनलाइट पहले से अगर बच्चों को देंगे, तो ये जो प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, वो धीरे धीरे स्लो जनरेट होगी। यानी एंटी एजिंग प्रोसेस पहले से ही आपकी डेवलप होती शुरू हो जाएगी। हमें एंटी एजिंग मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो एंटी एजिंग मतलब कि कम एंटी एजिंग मतलब सोलर विटामिन डी इज द बेस्ट एंटी एजिंग एलिमेंट। मतलब नॉट ओनली D3 की वजह से शरीर में जो भी सारी चीजें और जो जनरेट होती है, दैट all the things are for anti aging process. Like what? Because it's a very good tip to those people who are looking at anti-aging. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज से 10 या 12 साल पहले B12 की कमी भारत के अंदर लोगों को नहीं पता थी। यस, ठीक है, ये 10-12 सालों से हमें पता चला है। लोग क्या बोलते हैं कि साइंस डेवलप हुआ तो B12 की ये आ रही है। तो पहले साइंस डेवलप नहीं था, तो इसकी ये जो दिक्कत थी वो तो कोई फेस ही नहीं कर रहा था। ऐसा तो नहीं था ना। ऐसा तो नहीं था ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, जैसे हमने धूप के साथ इंटरेक्शंस बंद कर दिया, नॉर्मल धूप, सुबह की धूप या शाम की धूप के साथ जब हमने उसमें हमारे बॉडी को हैबिचुअल करना बंद कर दिया, तो D3 आया। अब जैसे D3 की कमियां हमारे शरीर में आनी शुरू हो गई, तो फर्स्ट थिंग वाज B12 की हमारे डेफिशिएंसी शुरू हो गई। थायराइड, आज आप देखिए, थायराइड मैक्सिमम लोगों में दिख रहा है। थायराइड, डायबिटीज, कैंसर। तो उससे क्या हुआ, तो कि ये सारी चीजें,
ओवर प्रोटीन हो गया तो कैंसर हो गया। अच्छा। ओवर प्रोटीन जनरेट, क्योंकि आपका ये D3 नहीं हो रहा है तो ओवर प्रोटीन जनरेट होना शुरू हो जाता है। D3 नहीं हुआ तो आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। हम लोग पहले के समय में क्या करते थे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। पानी कहाँ से पीते थे? आज हमारे घर में आरओ वाटर है या ऐसा होता है। पहले क्या होता था कि भाई जो हमारे आसपास जो गाय रहती थी, गाय या ये ऐसे जो हम पशुपालक जो रहते थे, वो पशुपालक बहुत ज्यादा थे हमारे आसपास। वो पशुपालक गायों को क्या करते थे कि भाई गायों को पानी पिलाने के लिए वो छान, उसका जो मड होता है, उससे छान और मड को मिला के उसका एक कुंड जैसा बनाते थे और वो कुंड में वो पानी डालते थे। अब वो पानी जो डालते थे तो थोड़ा पानी गाय पीती थी, इधर से उधर से वो घास या जो भी है वो खाना खा के आती थी और उसमें मुंह लगाती थी। तो वो जो मुंह लगाती थी वो पानी में मिक्स होता था और वो पानी धीरे थोड़ा पानी जमीन में एब्सॉर्ब होता था। अब 3x3 का ऐसा जो कुंड होता है ना, उसके जमीन के नीचे 50 मीटर के दायरे के अंदर से अगर आप पानी बोरिंग करके निकालेंगे और वो पानी अगर आप पिएंगे तो कभी भी आपको D3 B12 की ये डेफिशिएंसी आएगी ही नहीं। दैट इज नेचर, दैट इज नेचर, दैट इज प्रकृति। अच्छा, गाय कहां से लेती है? अगर हम देखते हैं तो जो खुंद वाली गाय है, जिसको पूछे खुंद है, इंडियन काउ, वो इंडियन काउ में एक नस की एक और वेन ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड सोलर वेन। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड सोलर वेन। वो सोलर वेन का काम क्या है? तो कि बॉडी के अंदर जो भी सारी चीजें वो खाना खाती है उसको वो एब्सॉर्ब करके उसको डाइवर्ट करती है। डाइवर्ट करके वो उसको जैसे हजम करके बाकी का कचरा जो निकालती है, जो छान निकालती है, उसको हम यज्ञ में यूज करते हैं। गोबर इज यूज्ड इन गोबर, यज्ञ। गोबर में जो हम यज्ञ में यूज करते हैं, वो गोबर की जो राख बनती है, ऐश बनती है, वो राख अगर उसका एनालिसिस करें तो इट कंटेन्स 46% ऑफ प्राणवायु। बाप रे। ओके। तो पानी में मिला के पी जाइए, शरीर पे लगाइए। शरीर पे लगाएंगे तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। शरीर पे लगाइए आपको ठंड नहीं लगेगी, शरीर पे लगाइए आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो वो वस्त्र बन गया। एशिस जो हम बॉडी पे लगाते हैं हमारे साधु संत, वो उनका वस्त्र हो गया, क्योंकि वही प्रोटेक्शन देता है गर्मी ठंडी सब में। उसकी जो छोटी छोटी जो मात्राएं होती है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो हमारे शेल्स होल्स के थ्रू अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर जो शेल्स होते हैं उसको रीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वो प्राणवायु है। हम जो नाक से प्राणवायु लेते हैं उसमें से मैक्सिमम प्राणवायु तो हमारा ब्रेन यूज कर लेता है, तो बॉडी के बाकी के पार्ट्स को प्राणवायु कहाँ से मिलेगा? तो ये जो साधु संत और ये जो सन्यासी है वो एशिस से प्राणवायु लेते हैं। तो उनको जो एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, बस हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए और एशिस लगाइए और पिए खाइए। वो तो आजकल कोई समझ में नहीं आता है किसी को कि वैदिक लाइफस्टाइल, वैदिक यज्ञ जो रिचुअलिस्टिक हमारा ओरिजिनल लाइफस्टाइल जो था, इट वाज वेरी साइंटिफिक। अच्छा, अब यहीं पे इसी को वापस हमारे जो ओरिजिनल टॉपिक है आत्मा, उसको मैं ये एशिस के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये जो फॉर्मेशन होता है ना कोल्ड प्लाज्मा और हॉट प्लाज्मा का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो कई वक्त के बाद अगर आपका एजिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, आप ब्रीदिंग फास्ट करते हैं, एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है, तो उसमें क्या होता है तो क्या आपका वो जो एजिंग प्रोसेस है वो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस से फास्ट हो जाता है। कोई कोई लोग जल्दी मर जाते हैं, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गया, उसका शेल्स जनरेट होने बंद हो गए, ठीक है। तो ये जो एशिस है वो एशिस प्राणवायु देती है, और प्राणवायु आपका अभी कोरोना के अंदर लोगों का ऑक्सीजन लेवल कितना है वो मेजर करना शुरू हो गया, तो तब लोगों को पता चला कि 99 98 इज नॉर्मल, 95 से कम गया तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तो वो जो लेवल मेंटेन करने वाली बात है वो हमारे ऋषि मुनि इतने सालों पहले हमारे आत्मा की जो है, ये जो सर्किट है ना, वो सर्किट को क्लींजिंग प्रोसेस कौन करता है? ये ऐश करती है। छोटे छोटे पार्ट जो बॉडी में जाते हैं और वो जो प्राणवायु है वो क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं। तो क्लींजिंग प्रोसेस से क्या होती है कि एनर्जी का जो सर्कुलेशन है वो स्मूथ रहता है। सो जितने भी यज्ञ और वो सब करते हैं, जो करवाते हैं, उनको उनका आज भी उतना ही बेनिफिट है। या हम लोग जो जिंदा रहते हैं ना, उसमें मैक्सिमम फायर एलिमेंट्स इज इफेक्टिव। प्लाज्मा,
सूर्य है वो भी एक प्लाज्मिक फॉर्मेशन है, वो भी प्लाज्मा है। यहाँ पे जो अग्नि है वो अग्नि के भी अलग अलग फॉर्मेशन है, अलग अलग 11 या 12 अलग अलग रूप होते हैं हमारे शास्त्रों में। जठराग्नि है, मतलब हाँ, अंदर का जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि आपका जो खाना है वो हजम करने का काम करता है। जठराग्नि अगर आपका मंद होता है या वीक होता है तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके कंटेंट्स एलिमेंट्स जो चाहिए वो आपको मिलेंगे नहीं, सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे तो आपका सेल जनरेशन बंद हो जाएगा और वापस आपका मृत्यु की तरफ, यानी एजिंग प्रोसेस आपकी आ गई, मृत्यु की तरफ आप बढ़ गए हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो हम यहाँ पे जो जिंदा रहते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ अग्नि, और ये जो अग्नि है वो अग्नि अलग अलग फॉर्मेट से है, दैट इज प्लाज्मिक फॉर्मेशन। तो हम भी जो हवन के पास बैठते हैं और हवन जो करते हैं उसमें जो अग्नि हमें पायस करती है, हम ऐसा बोलते हैं इट मेक्स अस पायस। तो वो पायस क्या होता है, तो कि हमारा इंटरनल फिल्ट्रेशन होता है, दैट फिल्टर अवर माइंड एंड बॉडी। It is so nice to know this whole process of जो चीज हमने कहते ना, जिसको हमने शास्त्रों की हिसाब से, लेकिन हमने जिसको रिलीजियसली कहा है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने स्क्रिप्चर्स को सेक्रेट कहा है, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक सेक्रेट, दे आर ऑल साइंस। मतलब कि हमारी लाइफ को एनहांस करने को, हमारे सोल को, बॉडी को, उसको एनहांस करने के तरीके है ये। What is the meaning of Veda? Veda means knowledge, ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या है, तो कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो सारी चीजें, ये जो सारा साइंस था उसको कहीं पे इकट्ठा किया है। मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक जर्नल लिखा। अब एक टॉपिक पे जब एक जर्नल लिखा तो वो जर्नल को मैं नाम दूंगा सूक्त। अब वो एक सूक्त है, वो पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पे है, जैसे बायोलॉजी पे है, तो दैट इज वन अध्याय, यानी ऐसे अलग अलग सूक्तों को एक अध्याय, यानी एक टॉपिक बायोलॉजी। अच्छा, अब जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेटाफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट बना दिए, लेकिन वो जो अलग अलग ये सारे कंपाइलेशन है वो किसके हैं, तो भाई मितुल त्रिवेदी के हैं। तो मितुल त्रिवेदी ने ऐसे अलग अलग ये जो टॉपिक है उसके ऊपर जो काम किया है, जो अलग अलग थीसिस लिखे हैं, तो मितुल त्रिवेदी के नाम पे एक अलग से बुक बन गई, दैट इज कॉल्ड मंडला। मंडल, हाँ। ऐसे मंडल 10 ऋषि के हैं, तो इट इज ऋग्वेदा। यस, दिस इज कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, यानी ये सारे साइंटिफिक थीसिस हैं। और वो थीसिस को बाद में हमारे जो निगम है उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें उसकी कमेंट्री दी गई है, यानी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि भाई व्हाट इज द साइंस। जैसे छंदोग्य उपनिषद के अंदर सोलर सिस्टम के ऊपर काफी सारी चीजें दी गई है, हमें पता ही नहीं है होल सोलर सिस्टम हाउ इट वर्क्स। मैंने जो ये बात की थी भाई सोलर सिस्टम पूरा जो एक चक्कर काटती है, हम 4 युग की बात करते हैं, तो सबसे पहले सतयुग होता है, तो पूरे चारों युग का आधा समय तो वो सतयुग ही खा जाता है, आप देखिए। हाँ, ठीक है, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, और सबसे आखिर में कलयुग। तो बाकी के आधे पार्ट में वो 3 युग है, यानी 3 युग को अगर आप टोटल करेंगे तो वो सतयुग जितना नॉर्मली अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो वो सतयुग का जो टाइम है, तो पृथ्वी, ये सोलर सिस्टम है, वो पूरी ये जो ब्रह्मांड के अंदर ये जो मिल्की वे है उसमें पूरा एक चक्कर लगाने में कितना पार्ट लेती है। तो वहां पे जो पोजीशन है वहां पे नॉर्मली एक एटमॉस्फेयर बदल जाता है। जब हमारी सोलर सिस्टम चक्कर लगाती है तो ये सतयुग के टाइम में ऐसा टाइम आता है कि जहां पे अर्थ पे ह्यूमन इवोल्यूशन या तो फिर इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन होना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो मेन एनर्जी है वो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वहां पे वो मेन एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कर, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है, तो वहां पे रीजनरेशन नहीं होता है, वहां पे कुछ पैदा नहीं होता है, वहां पे ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स या एनिमल्स जनरेट नहीं होते हैं। वो जब त्रेता, सब थे या जब सतयुग खत्म होना शुरू होता है तब प्लांट्स और ट्रीज शुरू होते हैं सबसे पहले।
यानी वो एटमॉस्फेयर, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट होना शुरू हो गया। तो अच्छा, सतयुग में क्या? सतयुग के शुरू के समय में ये सारी चीजें नहीं होती है। सतयुग जैसे जैसे आता है तब धीरे 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 ये सारी चीजें जनरेट होना शुरू हो जाती है। और कलयुग और सतयुग के बीच में जो संधि काल है उसमें तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई है। कलयुग खत्म होता है तब सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये संधि काल में क्या होता है कि वो सारी चीजें, वो एटमॉस्फेयर, अंधकार जिसको हम डार्कनेस बोलते हैं, वो डार्कनेस का टाइम होता है। तो डार्कनेस में से वो जब सतयुग होता है, यानी जब नई सुबह होती है, तो नई सुबह होते हैं तो धीरे 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 ग्रेजुअली आपकी बॉडी जैसे काम करना शुरू करती है, तो वैसे ही अर्थ धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। प्रकृति को आप समझिए, प्रकृति किस तरह से काम करती है, दैट इज साइंस। No, but now one more question I've got which I've not written earlier. आपने सतयुग और सबका टाइमिंग क्या, what do you think? Because उसके लिए मेरे आगे के स्पीकर्स जितने भी आए हैं, तीसरा इंटरव्यू करते हैं उसके लिए, क्योंकि वो जो टाइम का कैलकुलेशन है ना, वो एक यूनिक कैलकुलेशन है, उसकी थियरी यूनिक है। हम लोग जिसको बोलते हैं ना, जैसे 4,32,000 यानी कलयुग, तो 4,32,000 साल यानी कलयुग, ह्यूमन ईयर्स, तो वो फिजिकली क्या है, उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे अगर टाइम लैप्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ग्रहण होते हैं, एक्लिप्स होते हैं। तो एक्लिप्स के अंदर जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो 1 मास निकल जाता है, सूर्य ग्रहण होता है तो 1 साल निकल जाता है। तो जितने सूर्य ग्रहण हुए उसमें उतने साल निकल गए। अगर एक सूर्य ग्रहण पृथ्वी पे हुआ है तो एक जो 4,32,000 में से 1 साल जो है वो कम हो गया। कैलकुलेशंस में ऐसे भी काफी सारे कैलकुलेशंस इफेक्ट करते हैं 4,32,000 में। तो ये 4,32,000 साल या ये जो पूरा है वो क्या है, 43,20,000 जो है, पूरा होल चौकड़ी जो हम बात करते हैं, होल कल्प की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो मेरे ख्याल से एक अलग सेशन ले लेंगे, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी है, बिकॉज मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस है। मेरे 3-4 स्पीकर्स में से ऑलमोस्ट 3 स्पीकर ने राम के जन्म का जो टाइम है वो अलग अलग दिया है। सो मोस्ट पॉपुलर है 12,000 साल वाला, कि 12,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था, राम जी का। किसी का 1,500 नहीं, 3.5 5 कुछ 5 7 हजार वाला है। फिर और ये जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने कुछ 1,500 पहले ही ऋग्वेद का बताया है, बिफोर क्राइस्ट, विच इज 3,500 years। तो उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो अभी भी राम जी का जन्म और पूरे साइकिल का जो टाइमलाइन है ना, प्रॉपर टाइमलाइन, और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो राम वॉज इन त्रेता युग। हाँ एग्जैक्टली। सो देन तो 4,32,000 तो अभी उसके भी पहले ये 4,32,000, इसमें से तो अभी 5,000 साल, 5,500 साल ही हुए हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन। उससे पहले था द्वापर, 8 लाख। ये 4,32 है तो 8,64 वो था, 8,64,000 साल। अब उससे पहले त्रेता था तो 12,96,000। वो 12,96,000 में से कितने सालों के बाद राम आए, वो भी नहीं पता है। वो नहीं पता है। तो ये 8,36,000 साल तो वो निकल ही गए। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 8,36,000 वो और 5,500 साल ये, मान लो कि एंड में अगर वो पैदा हुए हैं तो 8,36,000 वो और ये हुए 5,500 साल, यानी करीब करीब 8,40,000 साल पहले की बात है ये, तब राम थे। अच्छा, राम ने राज्य किया 10,000 साल। हाँ एग्जैक्टली, वो कैसे? अच्छा, जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो हिज एज वाज समथिंग, मेरे ख्याल से अगर हम उसको अगर डिफाइन करें तो 40-42 साल की होंगी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई 10,000 साल यानी और 100 साल यानी 11,000 साल या 10,100 साल, ऐसा कुछ रहा होगा उनका। तो वो 10,000 साल पहले के अगर मैं ऐड कर लूं तो 8,40,000 की जगह 8,8 लाख साल पहले की मैं राम की बात करूं तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से तो वो 8.5 लाख साल हो गए। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम? लेकिन यहाँ पे अगर शास्त्रों की बात करें तो देयर आर 72 राम, 72 राम है। अब ये कौन से राम की बात कर रहे हैं? कल्प खत्म हुआ तो कल्प के बाद की भी अलग अलग राम है। अच्छा, ये त्रेता की बात करें अगर हम, तो त्रेता में ही 4 राम थे, एक साथ 4 राम थे धरती पे। जो 4 राम थे वो 4 राम में से एक था परशुराम, एक थे श्री राम,
ऐसे 2 और राम थे जिसके नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एंशिएंट टेक्सचर्स में ये है कि पैरेलल 4 राम थे। But we are talking about Ramji of Ayodhya and Sita wale Ram, na Sita wale Ram. मतलब we are the very clear कि we are talking about Ramji of Ayodhya and the one who was according to Rigved or according to Ramayana? According to Rigved, Rama is Atma. yes, but according to Ramayana maybe. Yes, according to Ramayana अगर हम बात करते हैं, तो according to Ramayana मेरे हिसाब से भी जो राम का जो टाइम पीरियड है, that is 7,500 years to 8,000 years old. According to Ramayana. According to Ramayana. वाल्मीकि रामायण की जो बात है या जो अभी जो बात कर रहे हैं, वो 7,500 से 8,000 साल पुरानी बात है. Okay, so okay, one more thing. ये हमने last time भी describe किया था. This is my last question कि अभी भी ऋग्वेद में अगर आपने बताया था कि एक नंबर 1.2.3 अगर लेती हूँ तो ऋग्वेद is not same from north to south. Yes. And in one of my last interviews, somebody mentioned कि हमारी जो नेचर में 4,000 साल के बाद जो occurrences आते हैं नक्षत्र के उसकी पोजीशन में, अर्थ का जो टिल्टिंग होता है, अर्थ का क्या कहते हैं झुकना, मतलब इफ इट इज साइड तो लेफ्ट में हुआ है, थोड़ा 20-30% डिग्री में डिफरेंस आया है, तो उसकी वजह से हमारा जो विजुअल्स है, मतलब नक्षत्र का विजुअल्स है, उसमें भी फर्क आया है. तो वो रीडिंग्स हमने ऋग्वेद में नोट किया है. तो दैट मीन्स ऋग्वेद वाज गेटिंग अपडेटेड रेगुलरली. तो हमारे पास कौन सा ऋग्वेद है जो हमारे पास वो स्टैंडर्ड, जैसे भगवत गीता में 700 कोई नहीं है हमारे पास अभी प्रेजेंटली ऐसे कोई ऋग्वेद, क्योंकि अभी जो ऋग्वेद आता है वो अभी के टाइम के हिसाब से, अभी के जो अर्थ का पोजीशन है उस हिसाब से वो जो सारी चीजें, जो कैलकुलेशंस होता है, जो सारा नॉलेज होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एरा. एट प्रेजेंट ऋग्वेद भी अपडेट होना शुरू हो रहा है, यानी जो पुराने टेक्सचर्स थे, पुराने स्क्रिप्चर्स, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. तो बट नेचर हम जो अभी नया जो लिखेंगे या जो नया इवैल्यूएट करेंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू विजन. हाँ, वो तो नक्षत्र का रीडिंग्स, लेकिन बाकी की सारी चीज तो सेम रहनी चाहिए. नहीं रहेगी ना, कैसे रहेगी? जैसे नक्षत्र चेंज हुए, पृथ्वी का एक्लिप्स, पृथ्वी का ये जो झुकाव है वो चेंज हो गया, तो बट नेचर है कि उसका एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया. एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा अर्थ का. अर्थ का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो ह्यूमन बॉडी का बायोलॉजी चेंज हो जाएगा. ऑब्वियसली बायोलॉजी चेंज होगा तो साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा. तो ये पूरा पैरेलल एक दूसरे के साथ जुड़ा है. फिजिक्स से लेके आप बायोलॉजी तक जाइए, फिजिक्स चेंज हुआ तो केमिस्ट्री चेंज होगा, केमिस्ट्री चेंज होगा तो बायोलॉजी चेंज होगा, एंड बायोलॉजी चेंज हुआ तो साइकोलॉजी चेंज होता है. That is very एंड अगेन साइकोलॉजी से आप फिजिक्स पे चले जाते हैं, दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल. तो पूरा चक्कर है ये. तो मुझे लगता है कि आई थिंक टाइम, काल और उसकी जो गणना है, इट्स माय वेरी फेवरेट टॉपिक. आई थिंक विल डू दिस सेशन अगेन बिकॉज डेफिनेटली we want to know and you will have to give us the proof that कौन से कहाँ पे scriptures पे with names and numbers कि यहाँ पे ये लिखा है, और time की जो calculations है, so what is the origin point of calculation. For example, हमने दूसरा समुद्र मंथन के पहले time नहीं था, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, उसके बाद time चालू हुआ. तो that also you will have to. समुद्र मंथन दो तरह के हैं. One समुद्र मंथन is cosmological event, उससे पहले टाइम नहीं था. Okay. And second समुद्र मंथन is according to that is an incidence, वो हमारे अर्थ पे हुआ था. तो हमारे अर्थ पे जो एक घटना हुई, हमने उसको कॉन्स्टेलेशन के क्रिएशन के लिए उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया. हम बोलते हैं कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे. तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था कि भाई ये जो पूरी प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमारे पिंड के, हमारी बॉडी के साथ कॉस्मोलॉजी या पूरा साइंस को कनेक्ट कर लिया था कि जो भी घटनाएं कॉस्मोलॉजी यानी यूनिवर्स में हो रही है वो हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट हो रही है, वो हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज थ्रू द कॉस्मोलॉजी. ये यूनिवर्स के थ्रू ही हमारा बॉडी बना है. पृथ्वी के ऊपर 72% पानी है, शरीर के अंदर भी जो पानी है वो भी उस हिसाब से है. ऑक्सीजन लेवल जो है वो किस तरह से हम ऑक्सीजन सांस में कितना लेते हैं, वी आर टेकिंग 21% ऑक्सीजन. पृथ्वी के आसपास जो ऑक्सीजन है दैट इज ऑलमोस्ट 21%.
अलग अलग केमिस्ट्री का जो गैस्ट्रिक फॉर्मेशन है या तो केमिकल पॉइंट्स हैं, वो अगर आप चेक करेंगे और हमारे बॉडी के अंदर जो है वो भी बोथ आर सेम। हेलो हेलो हेलो, You can continue. ओके। तो वो सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी है वो, यानी यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, तो वो वाली जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से काम करती है। पूरा चक्कर है जो मैंने आपको समझाया, फिजिक्स से लेके वापस फिजिक्स तक का, तो वो सारी चीजें अल्टीमेटली तो वही हम बॉडी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लवली टॉकिंग टू यू मितुल जी। आई थिंक वी विल टॉक अगेन। मुझे ये टाइम का मैंने जैसे बताया, आई गॉट सेट ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक वी विल कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के कहाँ से शुरू होके कहाँ एक होता चीज है। और हम लोग इस सेशन में मिस कर रहे हैं, हमने इस सेशन में खाली क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स के ऑथेंटिकेशंस जी, वो मैंने कहीं पे भी अभी शेयर नहीं किए हैं। और वो सारी चीजें मुझे ज्यादा आनंद रहेगा अगर मैं ये साइंटिफिक और स्पिरिचुअल ये दोनों को अगर कंबाइन करके हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, पीपीटी रिप्रेजेंटेशन और ऐसी सारी चीजें कुछ अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो दैट विल बी मोर यूजफुल, दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आप आंसर कभी है तो बट नेचर है कि जस्ट थियरी मैंने पास ऑन की है, लेकिन उसकी प्रूफ है वो दिखाना भी उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है उसको प्रूफ चाहिए। तो आपने इस बार बनाया है, रेडी है कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे? नहीं, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे इसका ओके, क्योंकि वो समझाना मेरे पास है उसका, लेकिन वो समझाना ज्यादा जरूरी है, तो इट विल टेक टाइम। Okay, fine, fine. Thank you. So thank you so much, मितुल जी. I understood your ideas and मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I hope हमारे audience को भी अच्छा लगा होगा. And in case if there are any questions, मुझे वो check करने दीजिए. वैसे हम लोग we don't allow because we have our own, you know, questions. तो लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ नहीं, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे इस टाइम भी आप क्वेश्चन अगर आप कवर नहीं कर सकते हैं तो यू कैन सेंड मी। जी जी जी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमारे खुद के ही बहुत सारे वो होते हैं टॉपिक, तो नहीं, आई डोंट थिंक क्वेश्चन नहीं है लेकिन आई थिंक अभी नहीं कर सकते, ये बहुत लंबे क्वेश्चन है. कैन यू से व्हेन द डिजायर कर्मा इज नॉट लेफ्ट आउट इट इज मोक्षा, व्हिच आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन. व्हेन ह्यूमन लाइव्स ऑन मार्स, मतलब ओके, इज देयर एनी lives on moon or Mars? Yes. There is a life? Yeah. अच्छा, okay. ठीक है. I think okay. We will not take all the points because then it will go into another long discussions. One more thing that I have to tell and I have to declare, if you are giving me the permission, on this Sunday I have my own webinar that is historical Vishnu. Vishnu is a historical character. That is my topic, and I am going to show you the so many proof, archaeological and geological evidence में दूंगा जो काफी अलग अलग कंट्रीज के आर्काइव्स में वो प्रिजर्व किए गए हैं. That I am going to show everyone. जैसे वैकुंठ की हम बात करते हैं जी, जैसे अमरावती, इंद्र की नगरी अमरावती की बात करते हैं, तो ये जो है उसका एक सेशन है वो 4 से 5. अगर किसी को दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन. वैशाली बहन के थ्रू वो आप मेरे पास आइए. श्योर श्योर. इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट माय ऑडियंस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सेशन प्लीज ज्वाइन करिए. संडे को आपको मितुल जी विष्णु और उनके एलिमेंट्स जिस तरह से उन्होंने बताया, ऐसे 5 वेबिनार्स में कंडक्ट करने जा रहा हूं एवरी संडे 4 to 5 PM, जिसमें 5 अलग अलग गॉड जो हम बात कर रहे हैं. हमारे हिसाब से गॉड और परमात्मा ये दो अलग अलग है. गॉड यानी देवता, हम हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर गॉड का डेफिनेशन है देवता, और परमात्मा परमेश्वर है, दैट इज अबाउ गॉड, दैट इज अबाउ देवता. हम जो ब्रह्मा विष्णु और महेश बोलते हैं दे आर परमात्मा, लेकिन इंद्र है,
सूर्य है, वरुण है, दे आर देवता। देवताज है। लेकिन मैं Yeah, ये Minister. मैं ऐसे 5 देवताज और परमेश्वर को मिला के एक सीरीज कंडक्ट करने जा रहा हूं, जिसमें पहले रहेगा विष्णु, फिर शंकर, नॉट शिव, दैट इज शंकर। शंकर एंड शिव बोथ आर डिफरेंट। Different, yes. That is Shankar. Third one is Brahma. Fourth one is Ganesh, and fifth one is Indra. Okay. And those all 5 characters are historical characters. वो कैसे उनका historical evolution धीरे धीरे God में कैसे convert हो गया, and how they become our परमेश्वर. That is the journey. Okay. और उसके historical evidence में बताने वाला हूँ. Very nice, very interesting. So I hope audience will like to join, and I'm sure they will learn a lot about all these topics. तो next time हम अभी session जब करेंगे तब हमारा जो बाकी का discussion है, especially about time, that we will continue. Thank you Definitely. so much, Mitul ji. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you.